meaningful discussions that we already have, and we have been having it for with eminent speakers all this while. Today is another important day, and we have a very interesting theme. We are talking about women's health. It's a very critical issue. We thought, why not talk about it, especially in the era of pandemic. Our partner here, ladies and gentlemen, is PCGL of Miranda House, and they've been lending their unflinching support. We're thankful to them. But let's begin this show today, and let me introduce the speakers. I have the privilege of welcoming Dr. Sarita Rao. She's a cardiologist with Apollo Indore. I welcome you, Dr. Rao. Okay. Thank you so much. And thank you. And we have Dr. Archana Kaul. She joins us from Prayagraj, and she's an expert in forensic medicine and toxicology. Archana ji, मैं आपका स्वागत करती हूँ. और we also have Dr. Pushpa Mishra here. She's a gynecologist, and she's with LNJP Hospital, New Delhi. So we have three women doctors, and we are talking about women's health. Especially we saw that in pandemic, it all got aggravated, and our concerns rose when it came to women's health. Of course, everybody was feeling this, and it was beyond gender. But maybe women had much more problem that they could not address. And that's why I talked to Sarita Rao and asked her, Dr. Rao, do you think that, being a doctor there on the ground, you saw patients, especially female patients, who had problems that they could not speak about maybe at home, but there were more concerns than ever before in this pandemic, Dr. Rao? So at the onset, Rakhi, let me thank you for inviting me to your talk show. And as related to the pandemic and women, now, women in the COVID pandemic have faced the brunt of the pandemic. Why do I say that? Is because, suddenly there was a work from home for most women, and the children were not going to school anymore, and even the husbands were working from home. So a woman was suddenly expected to become an excellent mother with children at home all the time, an excellent worker at workplace and perform from home. She was also expected to be an excellent daughter, and she had to fulfill all of these duties together at the same time. And the load was very much on women per se. Now, whenever a woman is overburdened in such a way, it's very difficult for them to, act as as superpowers, performing all the duties. And what we saw is that we saw a lot more women coming in with more of anxiety, more of stress, more of mental and physical fatigue at the same time. So I always say that, the COVID pandemic, the brunt of it was borne by the women, because they faced so many challenges, both personal, physical, mental, and on the professional front. Sure, but Dr. Rao, yes, so that's what you were saying. I go now to Dr. Pushpa Mishra and ask her, Dr. Mishra, especially, since you're a gynecologist, do you feel that, some of these problems related to, let's say, women's reproductive health, certain problems which, they were already facing, for example, women getting pregnant, or they had given birth to child, how would you really view at this pandemic, which actually could not afford to look so much at women's health in terms of prioritizing it at all, Dr. Mishra? So dealing with the biggest, largest COVID hospital of the India, in fact, Asia, I had seen a lot of things during these 2 years. So we did have a lot of female workers, healthcare workers, who were performing their duties in the hospital also, and they were also performing all the things in the at home also. They were not given all the facilities in the from the hospital side, like hotels and eating things, eateries, and so many things. So they were taking care of the family and the hospital. So it was so difficult for them to deal with the things expecting them. Dr. Mishra, आप ये भी कह रही हैं कहीं ना कहीं, because we also want to address a larger audience, so I'll break into Hindi sometimes. आप ये भी कह रही हैं कहीं ना कहीं कि एक तरफ आप डॉक्टर हैं, तो आप खुद लोगों पेशेंट्स को देख रही हैं, खासकर महिलाओं को, दूसरी तरफ अब महिलाएं अपनी समस्या लेकर आपके सामने आ रही हैं. तो दो चीजें हो रही हैं. एक तरफ आप एक वुमन डॉक्टर हैं, एक फीमेल डॉक्टर हैं,
दूसरी तरफ फीमेल हैं जो अपनी समस्याएं लेकर आ रही हैं, लेकिन कोविड टाइम में वो अपनी समस्याएं कई बार लेकर आ भी नहीं पाई क्योंकि वो लॉकडाउन था या परिस्थितियां ऐसी थी कि वो आपसे कंसल्टेशन ऑनलाइन कभी कभार कर पाई होंगी बट फिजिकली नहीं आ पाई। डॉक्टर मिश्रा, So I'm coming to that only. Problem is कि अभी if you have any idea, अभी recently NFHS, that is National Family Health Survey has come. Fifth one. Fourth was जी 5 years back. So malnutrition, anemia, everything has increased from the fourth to fifth. So उसमें कोविड का बहुत ज्यादा contribution था because people could not come to the hospital and females are the larger chunk of the patients who could not come to the hospital to visit for their problems. So that is the reason telemedicine was started, and it was legitimized also from the government side. So abhi bhi, when this COVID has gone, in the meantime, for the 3 months, 4 months, many peaks were there. So in between the peaks, जब patients आते थे, larger audience, for the larger audience, जब patients आते थे, अब उनमें anemia यानी कि खून की कमी वो बढ़ गया. जो हमारे कैंसर्स पहले अर्ली स्टेजेस पे आते थे हॉस्पिटल में, नाउ दे हैव स्टार्टेड कमिंग इन द लेट स्टेजेस. जो हमारे ट्यूमर्स छोटे आते थे, वो ट्यूमर्स हमारे बड़े आने लगे. एंड with everyone same story, madam covid tha to kaise aate. So it was a difficult situation for everyone, and females were at large, they were at the problem. affected. They could not come to the hospital. So two points I take from here, Dr. Mishra, you're saying कि वो early stages में अगर आए तो वो precaution बेहतर ले सकते हैं, लेकिन वो महिलाएं खासकर वो second या third stages में आई जहां पर उनके लिए medical facility देना एक तरह का टफ काम बन गया. और ये कोविड का एक मतलब उनकी prognosis worsen हो गई because of those things. जी, ये point अभी take. हाँ, you want to say something, Doctor? Yeah, so Rakesh ji, I just want to add on to what Dr. Pushpa was saying, that she's so right when she said this, people come in late stages. Now, because I'm a cardiologist, my patients are all emergency patients. Acute heart attack hoti hai patient ko. And what we saw COVID pandemic में कि पेरिफेरी से जो सारे पेशेंट्स आते थे हमारे पास हार्ट अटैक वाले और जो ठीक हो जाते थे बिकॉज दे रिसीव्ड अ पीसीआई इन टाइम, उनकी एंजियोप्लास्टी वक्त पे हो पाती थी. ड्यूरिंग दिस कोविड पेंडेमिक ये सारे चंक ऑफ पॉपुलेशन से जो पेरिफेरी से इंदौर आते थे, ऑल ऑफ देम सफर्ड अ लॉट. सो वी वुड हियर, फोन आती थी कि अटैक हो गया है और हमें आना है, बट कोई साधन नहीं है, कोई लाने के लिए तैयार नहीं है. नोबडी इज रेडी टू गेट अस हियर. And then we would get calls कि हमारी दवाइयां खत्म हो गई हैं और यहाँ हमें दवाएं मिल नहीं रही हैं और हम इंदौर आ नहीं पा रहे हैं. So I saw so many deaths which were unnecessary, क्योंकि ना तो वो दवाई लेने आ सकते थे, ना अपने रूटीन विजिट पे आ पाए, और ना ही इमरजेंसी सिचुएशन होने पे वो पेरिफेरी से एक मेजर सिटी तक पहुंच पाए जहां पे सारी सुविधाएं हैं. So another great point, Dr. Rao, you're making another great point. You're saying कि transport facilities became really scarce, it became problematic, और ये एक also बहुत बड़ी समस्या बन गई. कई बार गांवों से लेकर वो बड़े शहरों जैसे इंदौर तक आती हैं, वहां वो आने में उनको बहुत मुश्किल हुई क्योंकि या तो उनको कोई साथी चाहिए होता है जो मेल मेंबर हो, या कई बार वो गाड़ियां नहीं मौजूद होती हैं और इसकी वजह से भी उनके हेल्थ पर असर पड़ा. दैट्स अनदर वैलिड पॉइंट यू आर मेकिंग हियर, डॉक्टर राव. आई गो टू डॉक्टर अर्चना कौल, हु इज जॉइनिंग फ्रॉम प्रयागराज यूपी, और जो फोरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी में एक्सपर्ट हैं. डॉक्टर कौल, आप क्या कहेंगे, खासकर अगर आप देखें उत्तर प्रदेश में महिलाओं की एक बहुत संख्या, मुझे लगता है कि जो छोटे कस्बों छोटे शहरों में होंगी, उनको बहुत ज्यादा समस्या आई होगी. उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? हाँ जी, बहुत. हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? ओके जी. हाँ जी, तो छोटे कस्बे या बड़े शहर में लगभग बातें वही हैं, प्रॉब्लम्स वही हैं. और चूंकि हमारा जो स्पेशलिटी है फोरेंसिक मेडिसिन से रिलेटेड क्राइम यानी कि वायलेंस, तो वीमेंस के अगेंस्ट वायलेंस काफी बढ़ गया है इस कोविड एरा में. उसका 2-3 कारण बहुत बड़े-बड़े हैं. एक तो जॉब लॉस, और दूसरा ये है कि फैमिली के मेंबर्स आइसोलेशन की वजह से, और चूंकि बाहर लॉकडाउन है, बाहर जा नहीं सकते हैं, तो उसकी वजह से सब लोग साथ में रहते हैं. पहले तो था कि कभी बाहर निकल गए या जॉब पे चले गए, फ्रस्ट्रेशन कम होता था,
और इस तरह की चीजें थोड़ी कम होती थी, तो वायलेंस को थोड़ा अवॉइड किया जा सकता था। अब वो सारी चीजें, फैमिली मेंबर्स साथ में रहते हैं, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, तो वो रिएक्शन या फ्रस्ट्रेशन निकलता है मारपीट में। विमेन्स आर मोर वल्नरेबल फॉर दैट। तो उस इन सब चीजों को देखते हुए देखें तो हैरेसमेंट बढ़ गया है, चाहे वो सेक्सुअल हो, फिजिकल हो, इकोनॉमिकल हो, हर तरीके का। तो औरतों ने बहुत झेला है इन सब चीजों को, इवन मर्डर एंड तो सुसाइड। आपके पास किस तरह के कुछ अनुभव बताएंगे? पेशेंट्स आई, खासकर महिलाएं जो इनका शिकार हुई या बहुत बार बता भी नहीं पाती हैं, लेकिन उनका हेल्थ ये बताता है कि वो किस तरह की हैरेसमेंट सह रही हैं। हाँ जी, ये तो मैंने अभी बताया कि फैमिली मेंबर्स ज्यादा होते हैं इनके कल्प्रिट। ये विक्टिम होते हैं और वो बेसिकली हस्बैंड एंड रिलेटिव्स। तो वो मारपीट तो होती ही है, प्लस उनके जो इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं पैसे के लिए। डाउरी तो होता ही है हमारे आसपास के एरिया में। तो इन सब चीजों के लिए कि पैसे लेके आओ, और अगर जॉब छूट गई है तो उनके जो असेट्स होते हैं, ज्वेलरी एंड ऑल, उनको बेचो ताकि घर चलाया जा सकता है। तो वो सब डिनाई करने पर फिर फिजिकल वायलेंस होता है, उन्हें चोट लगती है, इंजरीज होती हैं, इस तरह की चोटें आती हैं। So, Dr. Rao, I'm coming to you again and asking you as to what difference did you really feel in terms of the patients coming in or not coming in, the kind of percentage maybe which lessened as far as female patients are concerned, the kind of diseases that you saw, and there was any pattern that was unique that you saw in your case in Indore? Yeah, So, kind of diseases that Rakhi ji, during the pandemic, so let's be very honest about it, that cardiac patients, they would come very less. The only condition in which the cardiac patients would reach was if they suddenly destabilized, अचानक से तबीयत खराब हो गई, वरना ज्यादातर जो स्टेबल कार्डियक पेशेंट्स थे, जो रूटीन चेकअप्स पे आते थे, वो नहीं आए। सेकंड, जो एक्यूट हार्ट अटैक वाले पेशेंट थे, जिनको ट्रीटमेंट की जरूरत थी, बहुत सारे नहीं पहुंच पाए। Thirdly, कोविड, बिकॉज आई से कोविड इज अ प्रोथ्रोम्बोटिक डिजीज, यानी कि कोविड के वजह से बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक्स हुई। और ये जब so because of covid जो हार्ट के प्रॉब्लम्स हुए, we saw a large increase in that, because हार्ट में क्लॉट्स होती थी, हार्ट अटैक्स होते थे, पैर के नसों में क्लॉट्स होती थी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस होती थी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म होती थी। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स, जो बहुत सारे पेशेंट्स में हमने देखे कोविड के टाइम पे। लेकिन उस सिचुएशन में there was a time when the delta variant was very prevalent कि किसी भी हॉस्पिटल में बेड नहीं थी, किसी भी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी होने लगी थी, एंड बहुत सारे हॉस्पिटल्स में एसेंशियल मेडिकेशंस की भी शॉर्टेज थी। तो बहुत सारे पेशेंट्स को टाइमली ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया, they could not even be admitted, and we lost a lot of patients because of availability of medical facilities. But I will again say कि जब we talk about women, you know, and I so agree with what Dr. Archana was saying कि एक घर में जब आप देखें तो प्रायोरिटी सबसे पहले हस्बैंड को मिलती है, जो मेल मेंबर है, उसके बाद प्रायोरिटी बच्चों को मिलती है, और लास्ट प्रायोरिटी एक लेडी की जरूरतें को मिलती है। तो अगर निग्लेक्ट करना है तो किसको करे, किसकी प्रॉब्लम निग्लेक्ट करे, वो लेडी की करे। अगर इग्नोर करना है तो किसको इग्नोर करे, लेडी को करे। और जैसे डॉक्टर अर्चना कह रही थी कि अगर अब्यूज करना है, गुस्सा निकालना है, फ्रस्ट्रेशन निकालना है, तो किस पे निकाले, घर की लेडी पे, घर की महिला पे। तो दैट इज व्हाई यू नो women are so vulnerable in our society कि हर चीज ले दे के उसी के सर पे आती है। जबकि अगर घर में एक लेडी नहीं है तो वो घर चल नहीं सकती है। The house is totally incomplete, it is in a mess if there is no lady in the house, and yet she is treated the worst. What a valid point, what an important point you have made. In fact, जो लोग भी इसको सुन रहे हैं वो इस बात को समझें, खासकर ये सारे तीनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं और ये अनुभव के साथ आपसे बात कर रहे हैं कि आप ये देखिए कि अगर घर में परेशानी आती है तो उसका झेलना भी एक महिला को पड़ता है, और साथ ही जो अगर हेल्थ केयर की बात आती है तो सेकेंडरी केयर में महिला आ जाती है, वो फर्स्ट केयर में नहीं आ पाती है। कई बार दवाओं की बात होती है तो कहा जाता है कि आप दवा आराम से बाद में कभी ले सकती हैं, ऐसी बातें अक्सर सुनने को नजर आती हैं। एंड वी आर ओनली सेइंग बेस्ड ऑन व्हाट वी आर एक्सपीरियंसिंग, what these doctors have experienced from the patients and what we have observed as our relatives or people around us. और ये हमारे लिए चिंता का विषय, इसलिए हमने शो का थीम भी ये रखा है। खासकर मैं अब पूछना चाहूंगी पुष्पा मिश्रा जी से भी। डॉक्टर मिश्रा, अब वैक्सीनेशन की बात रही,
या कोविड से छुटकारा पाने की बात रही, वहां पे आपको क्या लगा कि जो महिलाएं हैं वो कितना कई बार की घर का काम कर रही हैं, कितना आ पाएंगी, लड़कियां अब आ पाएंगी कि नहीं, जबकि ये एडोलेसेंट में भी अब शुरू हो गया है। तो आप क्या कहेंगी डॉक्टर? आई डिसएग्री विद एवरीवन कि महिलाओं को लास्ट प्रायोरिटी मिलती है। इन द 70s, 80s, 90s, इवन इन 2000s हम लोगों का ऐसे ग्रोथ वी वर ग्रोथ लाइक कि हमें ही अपने को लास्ट प्रायोरिटी देनी है। विद दैट वी आर लुकिंग एट द वर्ल्ड, एंड हम ऐसा ही करते हैं क्योंकि हमें लगता है हमारी 80s 90s की मूवीज में और हमारे जितने भी लिटरेचर है सब में उन्हीं को अच्छा माना गया है, लेडीज को who are doing like that, and the same way we are behaving, and that is the reason we are not getting anything. तो हमें अपना खुद से ये behavior change करना पड़ेगा, because I have seen during this time I have seen professor of university, professor of the हमारे medical colleges, they are themselves not come forward for their own management, जबकि वो आ सकती थी क्योंकि उनको लगा नहीं जी अपने को खुद बाद में दिखा लेंगे। तो पहले तो हमारा ये एटीट्यूड भी चेंज होना होगा। जिसके पास सारी अवेलेबिलिटी होती है, सब कुछ प्लेट में रखा होता है, वो भी अपने आप को आगे बढ़ के उन चीजों को नहीं लेते हैं। तो प्लीज पहले तो आप सब लोग अपने लिए सब कुछ करना शुरू कीजिए। सब कुछ मतलब हम जैसों के पास तो सब कुछ अवेलेबल है, उसके बाद में भी हम अपने को पीछे ही रखते हैं। तो प्लीज अब आगे से ऐसा करना बंद करिए। हम लोग को पीछे नहीं रहना है, हम लोग को जो भी चीजें हैं वो लेना है। नंबर 1, ये आपकी बात को भी मैं सामने लाती हूँ डॉक्टर मिश्रा। व्हाट यू आर सेइंग इज दैट प्रायोरिटाइज योरसेल्फ, इट हैज टू कम फ्रॉम यू रादर देन लुकिंग एट एनीबॉडी एल्स। तो आप exactly nowadays a middle class family, even lower middle class family is not having that much scarcity whatever we had in our mother's time. अभी उतनी स्कार्सिटी नहीं है मिडिल क्लास में, लोअर मिडिल क्लास में। तो आप भी थोड़ा सा चंक ले सकते हो, हेल्थ का भी और कंसल्टेशन का भी एंड सब कुछ का भी। गिवन द काइंड ऑफ सिटी दिल्ली इज, यहाँ पे सारी हेल्थ फैसिलिटी इन दिल्ली गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको हर चीज की ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। वो आपको मेडिसिन मिलने के बाद में भी दिस पीपल आर नॉट हैविंग द दिस थिंग बेनिफिट ऑफ द थिंग्स। तो ये आपको खुद करना है कि आपको वो चीजें लेनी है, नंबर 1। नंबर 2, you asked me about the vaccination. Definitely the patients or the persons who are not having high risk conditions like cardiac disease नहीं है, renal disease नहीं है, शुगर नहीं है, बीपी नहीं है, ऐसे लोगों में अगर वैक्सीनेशन है और एज उनकी साइड में है लाइक लेस देन 55 और 50, दे आर डेफिनेटली सेफर विद द वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के बाद में भी प्रॉब्लम उन्हें ही हो रही है जिसके पास में ये हाई रिस्क कंडीशंस हैं। तो इसलिए वैक्सीनेशन डेफिनेटली इज अ गुड थिंग एंड वी शुड गो फॉर दैट, एंड इट इज readily available everywhere. क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में तो मुझे लगता है जितनी अवेलेबिलिटी है उससे कम ही वैक्सीनेशन हो रहा होता है। So I think it is a positive step towards the good health from COVID. It should be okay. I would like to add. Yeah, please go ahead. So I would like to add to that, Rakhi ji. So it's a very important point ki we ladies have to learn to look after ourselves and to prioritize ourselves. हमें अपने आप को भी प्रायोरिटी देना है, हमें अपने आप को भी वक्त देना है, and we must focus on our own health also, which is why yesterday was, it was Go Red for Women Day. It was also World Cancer Day, and incidentally when you talk of Go Red for Women, heart health in women, so double the number of people, women who have cancers, double the number of that die from heart attacks. So ladies को अपने हेल्थ के ऊपर भी ध्यान देना है और ये चेंज हमारे अंदर से ही आ सकती है। We have to decide that we are also very important, और हमारी हेल्थ important इसलिए भी है क्योंकि अगर हम ठीक नहीं रहेंगे तो पूरा परिवार ठीक नहीं रह सकता है। That's also very important. For the family and for the overall, yes, for the overall wellness of society, a woman has to be okay. So she is important and she needs to know that she is important. Okay, also, I want to vaccination. I want to take up a question because I think Mary is here and Mary definitely has a question. Mary, go ahead. Can you? Yeah, you can ask your question, Mary. Rakhi, can you hear me? Yeah, tell me. Yeah. Yeah, please, Mary. No, I'm watching it and it's going very well.
I don't have any questions as of now. You don't have, so you're okay, you're listening to it. Anybody who has a question, because you know, these ladies are here for you, they're discussing, and some very valid points are coming in here. That, you know, don't look for anybody else, prioritize yourself, your own health, and you have to think about your own wellness, which is also important for everyone. But anything particularly also, you know, that you would like to talk about health when it comes to women's health, Dr. Archana Kaul, for example, हमने ये देखा कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, कोविड की ना बात रखें तो भी, जैसे कि बोन यू नो प्रॉब्लम्स की बात करें, हम बहुत सारे केसेस में देखा गया कि ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, पता नहीं चला, लास्ट में जाके लगता है कि अरे अब तो ये समस्या बड़ी हो गई, या हमारी कोई रिप्रोडक्टिव हेल्थ या हमारी कोई ऐसी गायनी रिलेटेड हेल्थ इश्यूज होती हैं, तो हम सोचते हैं कि अच्छा बाद में देख लेंगे, थोड़ा बहुत कुछ होगा. We do not take it seriously because this conditioning is not there कि हम अपने हेल्थ के ऊपर ज्यादा ध्यान देके मेडिकल एक्सपर्ट को तुरंत कांटेक्ट करें. So you can come in, Dr. Mishra, also, and you can talk about it. Two things, Rakhi. Like in my family, I tell everyone कि on your birthday, gift yourself with your health. तो सबके लिए बता रही हूँ, ब्रेस्ट कैंसर एंड सर्वाइकल कैंसर, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, दीज आर द टू कॉमनेस्ट कैंसर इन द वर्ल्ड फॉर द वुमेन. और इंडिया में भी इनसे डेथ्स जो होती हैं बहुत ज्यादा होती हैं. इफ द वर्ल्ड ओवर, इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, अगर ये कैंसर जो होते हैं हमारे स्टेज 1 या 2 में डायग्नोस होते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिया में ये कैंसर जो होते हैं स्टेज 3 एंड 4 में डायग्नोस होते हैं. अभी कोविड के टाइम पे बहुत से फ्रेंड्स, उनकी मदर, सबने मुझे से कंसल्ट किया, और वो अब 6 महीने से सोच रही थी दिखाना है नहीं दिखाना है, एंड दे कुड नॉट गो अहेड with the same thing, क्योंकि हमें 70s and 80s का बन के रहना है, हम 2000 की लेडीज नहीं बन सकते हैं. So उनके मैं डॉक्टर अर्चना कौल से पूछती हूँ कि 2000 आप दो चीजें सुनो. अपने बर्थडे के दिन आप दो चीजें अपने को गिफ्ट करो. इफ यू आर मोर देन 35 और 40 years, go ahead with the mammography, go ahead with the pap smear. पैप स्मीयर जो होता है हमारा, एक पानी की जांच होती है बच्चेदानी के रास्ते से, उसको आप अगर साल में एक बार करवाते हो, अगर आप मार्केट से भी करवाते हो, गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत जगह फ्री में है, दिल्ली में हर जगह फ्री में है गवर्नमेंट सेक्टर में, और मैमोग्राफी भी, और बाहर भी करवाते हो, तो अगर 2000 की साड़ी लेना चाहते हो या 5000 का गिफ्ट खुद को देना चाहते हो, प्लीज 2000 का गिफ्ट ये दो अपने आप को. प्रिवेंट द कैंसर्स which are most common. और हमारी धीरे धीरे एज के साथ में 50 years में ये अगर ये 10% लोगों में हो सकते हैं, तो हमारे ये 60-70 years में ये 20% लोगों में हो सकते हैं. तो जरा सी चीज है, सिर्फ सोचना है और समझना है. अच्छी बात आपने कही है, गिफ्ट योरसेल्फ द हेल्थ कार्ड ऑन योर बर्थडे, दैट्स द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव. जानो कि आप एक बीपी कराओ महीने में एक बार, अपनी बर्थडे के दिन अपना एक बीपी कराओ. 3 months से अपने बर्थडे के दिन अपना एक शुगर कराओ. इफ यू आर मोर देन 50 years or 40 years, if you have high risk. Let me go to Dr. Rao for ideas. What are your tips for women's health, Dr. Rao? I think when we talk about women's health, the tips are similar when we talk about a man, but the most important thing is learn to say no when everybody asks you to do everything, expecting you to be a superwoman. Take out that 1 hour time for yourself. Make sure that you exercise, at least आधे घंटे रोज exercise करना है. When you are choosing what food you want to eat, make sure that you have enough fresh fruit, green veggies in your diet. Make sure that you take time to de-stress yourself. Take half an hour for whatever de-stresses you. It could be yoga, it could be meditation, it could be cycling, it could be swimming, it could be just walking. But आधे घंटे अपने mental health और आधे घंटे अपने physical health के लिए please निकालें. रोज exercise करें. Avoid taking tobacco in any form, or avoid drinks also to a very major extent. And I think अगर ये सारी चीजें हम करें अपने लिए रोज fitness के लिए, mental और physical fitness के लिए, then we are going to be a healthy generation and very capable of looking after the nation as a whole. और इसके साथ I think annual health checkups, in my hospital we promote a lot of annual health checkups at very subsidized cost. और ये कंसेप्ट इसलिए आया है बिकॉज इन माय फील्ड आई विल से कि पहले ये कंसेप्ट था कि हार्ट अटैक सिर्फ बुजुर्गों में होती है, तो ऐसा नहीं है. हार्ट अटैक 20 साल के लड़के को भी होती है आजकल, बिकॉज स्ट्रेस लेवल, फूड पैटर्न्स, ये सारी चीजें इतनी इवॉल्व हो गई है कि एक 20 साल की लेडी को भी हो सकती है. सो आई विल से कि एक एनुअल हेल्थ चेकअप कराएं, हर व्यक्ति को एक एनुअल हेल्थ चेकअप कराएं, एंड वी कॉल इट
ABCDE, हम एक नेमोनिक बोलते हैं कि अगर 80 साल तक जीना है तो 80 का मंत्र अपनाएं, एंड दैट इज A यानी कि आपकी अब्डोमिनल गर्थ, मोटापा 80 सेंटीमीटर से कम रहे। B यानी कि आपका ब्लड प्रेशर है, जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 के आसपास रहे। C यानी कि आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, जो खराब कोलेस्ट्रॉल है जिसे हम LDL कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, वो 80 से नीचे रहे। D यानी कि आपकी जो डाइट है और डायबिटीज है तो आपकी फास्टिंग शुगर 80 के आसपास रहे। और डाइट में आप कोशिश करें कि जब भी खाना खा रहे तो 80 ग्राम ऑफ कैलोरिक फूड से कम खाएं। E यानी कि एक्सरसाइज, तो डेफिनेटली रोज अगर आप कर सकते हैं तो 80 मिनट करें, नहीं बहुत कर बढ़िया आपने कहा है डॉक्टर हफ्ते में राव। 10 मिनट करें। आई गो टू डॉक्टर अर्चना कॉल। डॉक्टर कॉल, आप कुछ कहना चाह रही हैं, बताइए। जी, मैं कुछ कहना ये चाह रही हूँ कि हम हर तरह की हेल्थ की तो बात करते हैं और मैनेज भी करने की कोशिश करते हैं, पर मेंटल हेल्थ की बात करना और उसके ट्रीटमेंट के लिए बात करना भी लोगों के लिए मुश्किल होता है, खासतौर से विमेन्स के लिए। तो साइकेट्रिक प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, जहाँ पे काउंसलर की जरूरत है, साइकेट्रिस्ट की जरूरत है, उनसे भी डिस्कस करके जरूर बताना चाहिए कि अपनी प्रॉब्लम्स को कि क्या हो रहा है, हमारे अंदर क्या हो रहा है, जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन। ये आगे चल के अगर ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है टाइमली तो आगे चल के बहुत ही डिजास्टर प्रॉब्लम बढ़ जाती है, प्रॉब्लम बिल्कुल। बढ़ जाती है। और ये वैसे ही हमारे सोसाइटी में अभी कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, जैसे जी। कि फेनोमेना आइसबर्ग हम बोलते हैं कि जितना दिखता है उसका कई गुना ज्यादा होता है। लोग मेंटल प्रॉब्लम्स को या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को इस एक स्टिग्मा की तरह लेते हैं और उसका ट्रीटमेंट कराना जरूरी नहीं समझते। अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो वो छिपाता है, बताता नहीं है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि अपने आसपास या अपने पेशेंट में वो चीजें अगर नजर आती हैं कि ये साइकियाट्रिक केस है, तो उनको रेफर करें कि आप किसी काउंसलर से मिलें और अपना ट्रीटमेंट कराएं। जी। फैमिली अब मेंबर हम के लिए जी, बहुत सारी बातें, आई थिंक वील कीप टेकिंग टिप्स फ्रॉम यू, बट बहुत सारे हमें बहुत अच्छे वैलिड पॉइंट्स यहाँ मिले हैं, जिसका मुझे लगता है सारे लोग जो देख रहे हैं, जिसमें महिलाएं पुरुष सभी हैं, हमारी टीम के लोग हैं, वो इसका फायदा जरूर उठाएंगे। एनी अदर क्वेश्चन विच इज कमिंग इन फ्रॉम द ऑडियंस, यू कैन रेज योर हैंड। Arish, I think Arish, my team member, he had a question about nutrition. वो कह रहे थे कि न्यूट्रिशन की जो कमी हुई वो भी उनको लगता है कि पैंडेमिक में ज्यादा देखी गई। डॉक्टर राव, आप ऐसा सोचती हैं कि न्यूट्रिशन पर कम ध्यान दिया गया? Yes, I agree with that, because pandemic में क्या हुआ कि लोग घर पे रहे, और जब आप घर पे 24 घंटे रहते हैं, then it's very easy to snack on food. So people ended up eating more as such, because when food is available all the time all around you, घर पे हर जगह food रहती है, तो you tend to eat in between your meetings, you tend to eat during your meeting, and obesity even in school children we saw rose, because बच्चे प्लेग्राउंड पे जाके खेल नहीं सकते थे, तो घर पे बैठे बैठे क्या करें, तो क्लासेस के बीच में भी वो they would eat, and they would eat all unhealthy food like pizzas, burgers, pasta. So in the pandemic I think unhealthy eating बहुत ज्यादा बढ़ गई, because लोग predominantly घर पे रहे जहां हर तरफ खाना अवेलेबल रहता है। जी, तो ये एक और अच्छा पॉइंट हमें नजर आया है। तो हम मुझे लगता है बहुत सारी बातें और होनी है, लेकिन हम आधे घंटे से ज्यादा बिता चुके हैं, तो विल नाउ हैव टू एंड हियर। राव, इसका एविडेंस भी हमारी न्यू सर्वे में था कि 4% इंक्रीज इन द ओबेसिटी इज देयर सिंस द लास्ट सर्वे, and 4% malnourishment was there, increased malnourishment was there. So healthy nutrition was lesser, either it was malnutrition or it was obesity. It increased by 4% and 3% in both the groups, and that is महिलाओं में ज्यादा देखा गया। children तो and children and women फिलहाल और आपके जो क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे लोग जो हमें सुन रहे हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे आपसे सवाल मांगे थे, कुछ सवाल आए भी हैं, लेकिन कुछ और सवाल आते रहेंगे। बट आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल द 3 women, 3 doctors who are taking the flag high. We have taken good note of all these important points you have shared here. हम इन सभी बातों का ख्याल रखने की कोशिश करेंगे, बल्कि समय समय पर आपसे और बातचीत करते रहेंगे। बट आप सभी कोविड वॉरियर्स को सलाम, खासकर ये तीनों महिलाओं को, डॉक्टर्स जो काम करती रही होंगी पैंडेमिक के टाइम में, इन सबको सलाम है अर्बल इंडिया की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया इस शो को देखने के लिए, और हम जल्दी ही फिर मिलेंगे। मेरी पूरी टीम की ओर से आप सबका शुक्रिया। हमें सोशल मीडिया पर हैंडल कीजिए डॉक्टर राव। आई मेट ऑन ट्विटर ओनली, सो सोशल मीडिया हैज एन इम्पैक्ट। ट्विटर पे हम हैं, लिंक्डइन पर हैं,
हम फेसबुक पर हैं, हम इंस्टाग्राम पे हैं, हमें वॉच कीजिए, हमारी वेबसाइट भी देखिए और इस तरह से हम सब आगे बढ़ें. थैंक यू सो मच एंड वेरी गुड इवनिंग एंड गुड नाइट लेटर. थैंक यू. Thank you and good Thank you. evening. Thank you. Thank you.